And today on panel with us, we have Dr. Rashmi Shah. So, quick introduction for Dr. Rashmi. She is a nutritionist, a doctor, a mental wellness coach, and a hormonal health expert. Um, through her clinical work, books, content, she focuses on the root causes of lifestyle related issues, especially how nutrition, hormones, mindfulness shape the long term well being. So, I look forward to asking you a couple of questions, Dr. Rashmi. And I know Sapna ma'am also has a long connection with you. I heard the glow on her face is thanks to you. Yes, So, absolutely. maybe some questions on that front as well. Yes, sure, sure. Thank you. Thank you, Jagruti. So, Dr. Rashmi, what personal or professional experience led you to explore wellness beyond conventional medicine? That's the So question. first of all, I was homeopathic practitioner, and while practicing homeopathy, as आप सबको पता है कि होम्योपैथी में तो सब लोग पूरी कुंडली निकालते हैं. So that time I understood कि it's not just about curing your symptoms, but it is more about what is the root cause. And root cause जो ailments होते हैं हमारे कोई भी ailments हो, everything is a psychosomatic origin. और हमें हमारे मम्मी पापा ने या हमारे एंशिएंट विजडम में भी बताया है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन. So your food, your lifestyle is more important than anything else in your life. So I went then. That was like quite attractive for me, a new science to learn on. And then I did my masters from US. And वो जैसे जैसे पढ़ते गई मेरा interest day by day, minute by minute बढ़ता गया. I learned about food science. I learned about how food work and react in your body. What suits you, what doesn't suit you. And then I understood that if you correct your food, if you correct basic lifestyle changes, then it's going to give you a sustainable life. और अगर ये balance जहाँ पे हिल जाता है ना, उसे हम कहते हैं imbalance, और which is not ease, that is dis-ease, disease. So that is the one thing which led me to this profession of being into fitness, nutrition, and hormones. Lovely. I remember hearing disease का breakdown as a kid क्योंकि spellings वैसे हम सीखते थे but thank you for reminding आज it's more relevant today than ever. Thank you, Dr. Rashmi. We'll keep now circling around with a few questions. We'll move on to our next question for Dr. Rashmi. Now, digital zindagi means irregular meals. मैं सबकी तो बात नहीं कर सकती मेरे साथ तो ये बहुत होता है मीटिंग आ जाती है कुछ हो जाता है समथिंग और दी अदर द मील्स बिकम इरेगुलर मे बी it's or there's like a constant mental load on just like something going on and on and on and of course notifications keep popping this and that a lot of things happen मेरा सवाल ये था कि how does this impact hormones and mental well-being and ऐसा हम क्या कर सकते हैं मे बी छोटी सी चीज जिससे हम अभी स्टार्ट करें टू स्टार्ट सेंटरिंग बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब इरेग्युलर मील्स लेते हैं तो ये अपने हॉर्मोन्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. एंड स्पेशली टू हॉर्मोन्स, दे आर कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन. अभी इंसुलिन का काम होता है फैट बर्निंग, वी ऑल नो दैट. लेकिन हम जब इरेग्युलर मील्स लेते हैं या तो खाने में बहुत लंबी गैप लेते हैं एंड फिर बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो उससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा सिक्रीट होता है. तो इरेगुलर मील्स का सबसे ज्यादा असर हमारे इंसुलिन और कॉर्टिसोल पे होता है एंड सो द फैट गेन. 80% of the time if you can take all your meals regularly on time and 20% of the time अगर डिस्टर्ब हो भी जाता है तो उसे करेक्शन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक सबसे बेस्ट चीज अगर आप कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा आपका स्क्रीन के सामने काम है, ऑनलाइन ज्यादा रहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको फॉलो करनी है, वो है पानी पीना. द मोर यू आर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, वो रेज, आपका मेंटल लोड, डिसीजन फटीक एंड ये सारी चीजें आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है. सो ये एक चीज को कभी भी नहीं भूलना. और पानी पीने के लिए आप स्क्रीन के सामने बैठ के भी पानी पी सकते हो.
एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है द रूल ऑफ 20, जिसे कहते हैं कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन। या तो कोई छोटा सा पौधा अपने डेस्क पे रखो, अ सिंपल लाइक अ मनी प्लांट, उसके वो ग्रीन पत्तों को देखो। अगर विंडो है तो विंडो से बाहर वो ट्री के ग्रीन कलर को देखो। दैट विल रिलैक्स योर आईज, योर ब्रेन एंड योर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। दैट विल स्टार्ट बैलेंसिंग। एंड सबसे ज्यादा तो जो स्ट्रेस आता है हम पे, ये सब यूवी रेज की वजह से या स्क्रीन के सामने रहने से, वो सारा कम हो जाएगा। अपने आप हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी। बट अगेन डोंट, चाहे जो भी हो जाए, आप स्क्रीन के सामने 10 मिनट काम कर रहे हो या 10 घंटे कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर वाटर। वाटर इनटेक, अगर आप कंटिन्यूअसली पानी सिप करते रहो तो वो आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती और बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में नहीं जाती। सो आफ्टर योर वर्क व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग यू आर इन योर कंट्रोल। लेकिन आपने काफी घंटों तक ना कुछ खाया है ना पानी पिया है और आप फिर खाना खाने बैठोगे तो इट विल बी लाइक टूट पड़ो टाइप्स। इसलिए बहुत बार लोग जब ऑफिस से निकलते तो व्हाट दे, उनका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि लंच के बाद कुछ खाया नहीं है या तो फिर चाय पी है शुगर वाली, एंड देन वो सारे स्ट्रीट फूड के स्मेल आने लगते हैं, देन वो भेल एंड पानी पूरी, एंड फिर दैट इज द ओनली टाइम जहाँ पे पूरा दिन भर का डाइट धुआं हो जाता है सबका। तो कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप ईटिंग गुड फैट्स विच विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर टाइम, एंड अ प्रोटीन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे अभी मैंने यहाँ, मैं जिम से आई डिडंट गेट टाइम टू डू ब्रेकफास्ट, तो मुझे यहाँ पैनल डिस्कशन के लिए बैठना था, तो आई जस्ट हैड माय प्रोटीन शेक, तो आई एम फुल टिल नेक्स्ट 3 आवर्स एंड आई एम रिलैक्स्ड कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। सो प्रोटीन एंड फैट्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, उसके साथ में पानी एंड रूल ऑफ 20, दैट्स इट, मैं रोज करती हूँ।